اس 80 سالہ بڑھیا کے بارے میں محلے میں عجیب و غریب کہانیاں گردش کر رہی تھیں۔ خالہ صابرہ کا خیال تھا کہ مائی پنکھی بنجارن ہے اور یہ کسی شہری بابو کے عشق میں مبتلا ہو کر اپنا قبیلہ چھوڑ آئی اور بعد میں وہ شہری بابو اسے چھوڑ کر چلتا بنا۔ پنواری شوکت مائی پنکھی کا تعلق کلکتہ سے جوڑتا اور تھیٹر میں کام کرتی تھی۔ گردش زمانے نے اسے لاہور پہنچا دیا اور نائی مشتاق کا خیال تھا کہ یہ بنگالن ضرور ہے، لیکن اس کا تعلق شاہی محلے سے تھا اور اپنے وقت کی بہترین رقاصہ تھی۔ پھر وقت نے اسے کنارے لگا دیا اور کسی کا خیال تھا کہ یہ جادو کرنی ہے۔ جی دوستو، پیش خدمت ہے انوار علائیگی کا نیا انوکھا اور قیامت خیز سلسلہ مسکن۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کیا بن گئی ہوں، اتنا جانتی ہوں کہ جو بنی ہوں اپنی مرضی سے نہیں بنی، اور ملکن نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ آبر کو اس وقت بڑی مجبور سی دکھائی دی اور معصوم سی، اور یکدم اسے اس پر پیار آ گیا۔ اس نے اسے قریب کرتے ہوئے پر امید لہجے میں کہا، پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور آبر کو قطعاً اندازہ نہیں تھا کہ اس گھر میں ہو کیا رہا ہے اور ڈاکٹر نوشاد کیا کھیل کھیل رہا تھا، اور پورا گھر اس کے اشاروں پر ناچتا، اور آبر کو خود معلوم نہ تھا کہ وہ کس کے ہاتھوں کٹ پتلی بنا ہوا ہے۔ ایک دن آبر ملکہ کے آفس کے نزدیک سے گزر رہا تھا تو یکدم خیال آیا کہ کیوں نہ ملکہ کا آفس دیکھتا چلے، اور چاہتا تو وہ اسے فون کر کے اپنی آمد کی اطلاع دے سکتا تھا، لیکن اس نے خاموشی سے جانا مناسب سمجھا اور ملکہ کو سرپرائز دینا چاہا۔ اس نے آفس میں داخل ہو کر استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی سے ملکہ کے بارے میں پوچھا۔ اس لڑکی نے دفتر کے آخر میں اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ وہ اس کمرے میں ریٹا کے ساتھ بیٹھی ہے۔ آبر نے دروازے پر پہنچ کر ہلکی سی دستک دی اور ہینڈل دبا کر دروازہ کھول دیا، اور کمرے میں کوئی نہ تھا۔ ملکہ تھی اور نہ ریٹا، اور کمرے میں البتہ 2 میز ضرور نظر آ رہی تھی، اور چھوٹی میز خالی تھی، اس پر کچھ نہ تھا، جبکہ بڑی میز پر فائلوں کے ساتھ ایک کمپیوٹر بھی موجود تھا، اور ان میزوں کے سامنے ایک اور دروازہ تھا۔ آبر سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے، اور سوچا واپس جائے اور استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی کو بتائے کہ کمرے میں کوئی نہیں، اور پھر ایک لمحے کو خیال آیا کہ سامنے بند دروازے کے اندر کیوں نہ جھانک لے، اور ہو سکتا ہے وہ دونوں اندر ہوں، اور یہ سوچ کر وہ پورے اطمینان سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اور جب ریٹا واش روم سے باہر نکلی تو اس نے کسی کو فراز یونس کے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا، اور یہ دیکھ کر کہ اندر جانے والا کوئی مرد ہے، اس کے حواس چل ہو گئے، اور وہ جانتی تھی کہ دفتر کا کوئی آدمی اس کی اجازت کے بغیر اندر نہیں جا سکتا، اور پھر یہ کون اندر گیا؟ اسے یہ بات بھی معلوم تھی کہ فراز یونس کے پاس اس وقت کون ہے، اور یہ کیا غضب ہو گیا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی، اور اتنی دیر میں دروازہ کھڑک کر کے بند ہو گیا تھا، اور آبر نے اندر داخل ہو کر جو منظر دیکھا وہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ کوے کی یخنی پینے کے بعد مائی پنکھی پر خمار چھا جاتا اور چہرے پر سرخی آ جاتی، جھریاں مٹنے لگتی، اور کوے کو بگے کے حوالے کرنے کے بعد اس نے دروازہ بند کر کے پتھر لگایا اور چارپائی کی طرف بڑھی۔ انجو کمرے میں جا چکی تھی، اور اس نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، دیکھتی رہی اور کچھ سوچتی رہی، اور نشہ بڑھنے لگا تو وہ چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس نے اپنے گلے میں پڑے چاندی کے تعویذ کو چھوا اور کچھ بڑبڑائی، اور تعویذ کو چھو کر ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیا، اور کچھ ہی دیر میں اس پر گہری نیند طاری ہو گئی۔ جب اس کا نشہ ٹوٹا تو شام گہری ہو گئی تھی، اور نیم کی خشک پتیوں سے چارپائی اور اس کا جسم ڈھکا ہوا تھا، اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اسے یوں لگا جیسے دروازے پر کوئی ہے۔ وہ اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تو باہر سے آواز آئی، رانی جی دروازہ کھولو۔ اور مائی پنکھی نے پتھر ہٹا کر دروازہ کھولا تو سامنے چکرم کو کھڑا پایا، اور وہ اسے دیکھتے آگ بگولا ہو گئی، اور اس کے منہ سے غصے بھری آواز نکلی، تو؟ اور چکرم کی آنکھ پر پٹی بندھی تھی، اور آنکھ پر رکھی ہوئی روئی خون آلود تھی، اور وہ سخت کرب میں مبتلا تھا، اور مائی پنکھی کی آواز سن کر محض اندازے سے وہ اس کے قدموں میں جھکا اور اس کے پیر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ رانی جی مجھے معاف کر دو، ایسی ذلیل حرکت، اور تو نے آخر کیا سوچ کر انجو کو اغوا کیا؟ اور مائی پنکھی بولی، جو کیا اس کی سزا پائی۔ اور چکرم نے پاؤں پکڑے پکڑے کہا، آپ پھر یہاں کیوں آیا ہے؟ اور مائی پنکھی نے پوچھا، آنکھ سے خون جاری ہے اور شدید تکلیف میں مبتلا ہوں۔
تو پھر ہسپتال جا، میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ اور مائی پنکھی نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے پاؤں چھڑا لیے۔ ہسپتال سے پٹھی کروا کر آیا ہوں۔ اور چکرم نے بتایا، اور رانی جی مجھے معاف کر دو، میں اب کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا اور آئندہ تو اس طرح کا کام نہیں کرے گا۔ مائی پنکھی نے عہد لیا۔ میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، اس نے فوراً عہد لیا۔ اور رانی جی مجھے اس تکلیف سے نجات دلوا دیں۔ آنکھوں سے پٹھی ہٹا اور مائی پنکھی نے حکم دیا۔ چکرم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے بہت احتیاط سے آنکھ سے پٹی ہٹائی، اور مائی پنکھی نے اس کی اکروتی آنکھ پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، شکر ادا کر کہ تیری آنکھ ضائع ہوئی ہے اور ضائع نہیں ہوئی۔ ابھی تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، چکرم نے بے بسی سے کہا۔ تو ایسا کر کے الو کی آنکھ کا سرما لگا لے اور یہ خون فوراً رک جائے گا اور تیری بینائی بھی بے حال ہو جائے گی۔ مائی پنکھی کو جانے کہ اس پر رحم آ گیا، اور ویسے کام اس نے ایسا کیا تھا کہ مائی پنکھی کو شدید غصہ تھا۔ اگر اس کو انجو کے کوئی نقصان پہنچ جاتا تو وہ کہیں کے نہ رہتی، اور انجو اس کے لیے بہت اہم تھی اور اس کا قیمتی سرمایہ تھی۔ اس نے انجو کو بہت مشکلوں سے پایا تھا، اور ایک طرح سے انجو میں اس کی جان تھی اور یہ منحوس اس کی جان لے اڑا تھا۔ چکرم اس کی بات سن کر بے حد ممنون ہوا، اور وہ اندازے سے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، اور رانی جی آپ بہت عظیم ہیں۔ اچھا چل اب فوراً دفع ہو جا، اور پتہ نہیں میں نے تجھے کیوں معاف کر دیا۔ بس اب بھاگ جا یہاں سے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنا فیصلہ بدل دوں۔ ابھی مائی پنکھی کہہ ہی رہی تھی کہ اچانک کہیں سے انجو نمودار ہوئی، اور وہ اپنے اگلے دونوں پاؤں جھکا کر جست لگانے والی تھی کہ مائی پنکھی زور سے چیخی، نہیں انجو! اس وقت تک وہ زرکند بھر چکی تھی۔ اب خود کو روکنا اس کے اختیار میں نہ رہا، اور البتہ اتنا ضرور ہوا کہ کالے منہ کی سفید بلی نے اس کارروائی سے خود کو روک لیا، اور وہ جو کرنے والی تھی، اور اس کا نشانہ چکرم کی خون بہاتی آنکھ تھی، اور وہ اس آنکھ کو باہر نکال دینا چاہتی تھی، اور یہ کام وہ چکرم کے گھر پر ہی انجام دینے والی تھی، لیکن مائی پنکھی کے حکم نے اسے ایسا نہ کرنے دیا۔ اور اب بھی مائی پنکھی کی تنبیہ آڑے آ گئی تھی، اور انتقام کی حسرت اس کے دل میں رہ گئی۔ انجو چکرم کے سر پر گری تھی۔ اگر وہ بجلی ہوتی تو چکرم جل کر راکھ ہو جاتا، لیکن وہ بجلی نہ تھی، بلی تھی، اور لہٰذا کھسا کر اس کے بال نوچ کر رہ گئی، اور پھر اس نے اس کے سر سے چھلانگ لگائی اور دوڑتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ حرام کی اولاد، اور تیری قسمت اچھی تھی کہ تو بچ گیا۔ اور مائی پنکھی غصے بھری آواز میں بولی، اور اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر دوبارہ آئے اور یہاں سے دفع ہو جا۔ اور چکرم خوف زدہ ہو کر فوراً کھڑا ہو گیا اور ہاتھ پھیلا کر دروازہ ڈھونڈتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد مائی پنکھی نے گھر کا دروازہ بند کیا اور کواڑ کے پیچھے پتھر رکھا، اور صحن میں بڑی چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی اور زور سے آواز لگائی، انجو! اندر کمرے میں فرش پر لیٹی ہوئی انجو نے مائی پنکھی کی آواز سنی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، اور مائی پنکھی کی ایک آواز پر جب انجو باہر نہ آئی تو اس کا ماتھا ٹھنکا، اور اس نے پھر آواز لگائی، انجو باہر آ! اور انجو نے اس کی آواز سنی لیکن طرح دے گئی، اور اس نے اپنے اگلے پاؤں پہ سارے اور آنکھیں موند لیں۔ مائی پنکھی نے کچھ دیر کے آنے کا انتظار کیا، اور جب وہ باہر نہ آئی تو اسے یہ اندازہ کرنے میں دیر نہ لگی کہ انجو روٹھ گئی ہے۔ مائی پنکھی ایک جھٹکے سے چارپائی سے اٹھی اور تیز قدموں سے کمرے میں چلی گئی۔ اس کمرے میں ایک بیڈ پڑا تھا اور ایک لوہے کی الماری تھی، اور اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ انجو الماری کے سامنے فرش پر پاؤں پھیلائے لیٹی تھی، اور اس کی سرخ آنکھیں بند تھیں۔ انجو تجھے کیا ہوا؟ اور مائی پنکھی انجو کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ انجو نے اس کی بات سنی لیکن وہ ہلی تک نہیں، اور نہ ہی اس نے آنکھیں کھولی۔ مائی پنکھی نے اسے بڑے پیار اور احتیاط سے زمین پر سے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا، اور اپنے گلے میں بڑے تعویذ کو گلے سے نکالا اور کچھ پڑھتے ہوئے اس کے جسم پر پھیرا، اور پھر پیٹھ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد مائی پنکھی کے کانوں میں رونے سسکنے کی آواز آئی، اور اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ انجو کو روتے ہوئے پایا، اور وہ اندھی لیٹی تکیے پر منہ دیے سسک رہی تھی۔ مائی پنکھی بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی، اس کا سر سہلانے لگی۔ اس کے کالے ریشمی بال کھلے ہوئے تھے۔ انجو کیوں روتی ہے؟ اماں کیا تو نہیں جانتی؟ اور انارا نے روتے روتے پوچھا۔ اور میں نے تجھے اس کانے کی دوسری آنکھ نہیں پھوڑنے دی، اس لیے روتی ہے؟ اور مائی پنکھی نے سوال کیا۔ ہاں اماں، اسی لیے، انارا نے اقرار کر لیا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہے؟ ہاں اماں بہت، اور انارا نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا، اور اس کی حسین آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، اور پھر شکوے بھری آواز میں بولی، اس نے مجھے دھوکے سے اغوا کیا تھا، اور تیری انجو کو، اور میری انجو، مجھے بھی اس پر شدید غصہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس سے ایک بے حد اہم کام لینا ہے،
اور وہ میرے پاس میرے بلاوے پر آیا تھا اور مجھے اپنا کام نکال لینے دے، پھر میں اسے تیرے حوالے کر دوں گی اور جو چیز چاہے کرنا۔ اور مائی پنکھی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، آخر ایسا کیا کام ہے کہ تو اس کی محتاج ہے؟ وہ انارا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں اس کانے کی محتاج نہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ میرا وہ کام وہی کر سکتا ہے۔ اب تو میں ماری ماری قبرستان میں نہیں پھر سکتی۔ اور مائی پنکھی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اماں قبرستان سے کیا لانا ہے؟ انارا نے پوچھا۔ وہ وہاں سے میری مرضی کی انسانی ہڈیاں لائے گا اور میں اس پر کالے شبت پڑوں گی، اور اس کے بعد وہ کانا ان ہڈیوں کو پسوا کر لائے گا اور مجھے ان کا برادہ چاہیے۔ مائی پنکھی نے راز کھولا۔ اماں تو ان ہڈیوں کے سرمے کا کیا کرے گی؟ انارا نے سوال کیا۔ میں اس راز سے فی الحال میں پردہ نہیں اٹھا سکتی۔ اور مائی پنکھی بولی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اماں بیٹھنا، کہاں جا رہی ہو؟ اور بے شک تو راز سے پردہ نہ اٹھا، اور میں اپنے ٹھکانے پر جا رہی ہوں اور یہاں کمرے میں میرا دم گھٹتا ہے۔ اور مائی پنکھی کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولی، آ جا، تو بھی باہر آ جا۔ اچھا اماں۔ اور انارا بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ وہ مائی پنکھی کے پیچھے باہر صحن میں آئی اور صحن میں گہرا اندھیرا چھا چکا تھا، اور انارا نے باہر نکلتے ہوئے پوچھا، اماں کیا لائٹ جلا دوں؟ جلا دے، تیری مرضی ہے۔ اور مائی پنکھی نے فیصلہ اس پر چھوڑا اور بغیر پریشانی کے اندھیرے میں چلتی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ انارا نے دیوار پر لگے بٹن کو آن کر دیا اور نتیجے میں صحن میں ایک مریل سا بلب روشن ہو گیا، اور بلب کے جلنے کی وجہ سے صحن کی فضا مزید پر اسرار ہو گئی۔ انارا حسب معمول زمین پر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ انجو اوپر آ بیٹھ جا۔ اور مائی پنکھی نے محبت امیز لہجے میں کہا۔ نہیں اماں، میں تیرے پاؤں دباؤں گی، انارا فرما برداری سے بولی۔ تو بہت اچھی ہے۔ اور مائی پنکھی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، بہت پیاری۔ اماں تیرا بھی کچھ ٹھیک نہیں، کبھی مجھے اباگن کہتی ہے اور کبھی اچھی اور پیاری کہتی ہے۔ اور انارا نے مسکراتے ہوئے کہا، آخر میں کون ہوں؟ اچھا آ، میں تجھے تیرے بارے میں کچھ بتاتی ہوں اور تیرا گھر دکھاتی ہوں۔ جا چولہے سے کوئلہ نکال لا۔ اور مائی پنکھی جانے کیوں یک دم مہربان ہو گئی۔ لاتی ہوں اماں۔ اور انارا نے اسے مہربان ہوتے دیکھ کر باورچی خانے کی طرف لپکی۔ اس نے باورچی خانے کی لائٹ جلا کر چولہے سے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھایا اور باہر آ گئی۔ مائی پنکھی کوئلہ ہاتھ میں لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے صحن کے درمیان پہنچ کر اس کا کوئلے سے 4 لکیریں کھینچی، اور اس طرح 4 ضرب 4 کا ایک مستطیل بن گیا، اور اس نے اس مستطیل کو 6 خانوں میں بانٹا، اور 7واں خانہ اس نے مستطیل کے باہر نیچے کونے میں بنایا۔ 7 خانے بنانے کے بعد اس نے انارا کی طرف دیکھا اور بولی، انجو، اور تجھے میں 7 گھر جھٹکاؤں؟ آخر کو تو بلی ہے نا؟ ٹھیک ہے اماں، بتا مجھے کیا کرنا ہے۔ پہلے گھر میں بیٹھ اور دیکھ تجھے کیا نظر آتا ہے۔ اور مائی پنکھی نے اسے پہلے خانے میں بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور خود بھی ان خانوں سے باہر 7ویں خانے کے نزدیک پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ انارا تجسس بھرے انداز میں چلتی پہلے خانے میں اکڑوں بیٹھ گئی، اور مائی پنکھی نے آواز لگائی، ارے آرام سے بیٹھ۔ اور انارا اس کے حکم پر اسی انداز میں بیٹھ گئی جیسے مائی پنکھی بیٹھی تھی۔ مائی پنکھی نے اپنے گلے میں پڑے چاندی کے خول میں بندھا بھاری تویز اتارا اور اسے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر سختی سے مٹھی بند کر لی اور آنکھیں موند لی۔ چل انجو چل۔ انارا کے جسم میں اچانک حرکت ہوئی اور وہ کھڑی ہو گئی، اور جب اس نے ایک قدم بڑھایا تو یہ منظر یکسر بدل گیا، اور اب یہاں صحن تھا اور نہ نیم کا درخت، اور سامنے مائی پنکھی تھی اور نہ خانے نظر آ رہے تھے، لیکن مائی پنکھی کی آواز آ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی، ہاں انجو کہاں ہے تو؟ انجو نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں اور پھر بولی، اور میرے چاروں طرف جھونپڑیاں ہیں اور میں ایک جھونپڑے کے سامنے کھڑی ہوں، اور چل جھونپڑے کے اندر چل۔ مائی پنکھی نے اسے حکم دیا۔ میں اندر آ گئی، انجو نے بتایا۔ اور اب کیا دکھائی دے رہا ہے؟ مائی پنکھی نے پھر پوچھا۔ جھونپڑی میں نیچے فرش پر ایک مرد عورت لیٹے ہیں، اور یہ دونوں بے خبر سو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ایک بچی لیٹی ہے، بہت پیاری، بہت سندر۔ اور انارا کے جو سامنے تھا وہ بیان کیا۔ بچی کتنی بڑی ہے؟ مائی پنکھی نے سوال کیا۔ یہی کوئی 5-6 سال کی ہوگی، انارا نے اس لڑکی کے چہرے پر نظریں جمائے کہا۔ انجو جانتی ہے یہ کون ہے؟ مائی پنکھی نے پوچھا۔ نہیں جانتی انجو، یہ تو ہے اور یہ تیرا پہلا گھر ہے، اور یہ جو تیرے سامنے مرد عورت لیٹے ہیں یہ تیرے ماں باپ ہیں، اور تیرا باپ دلبر ذمہ دار قائم شاہ کا خدمتگار ہے، اور تیری ماں پیتو حویلی کی ملازمہ ہے جو تجھے اپنے ساتھ رکھتی ہے، اور قائم شاہ کا ایک ہی بیٹا ہے، بڑی منتوں کے بعد جنم لینے والا، اور اس کا نام کامران ہے اور تیرا نام ریشمہ۔
मालकिन असगरी अच्छे दिल की औरत है और गरीबों का खास ख्याल रखने वाली। यही वजह थी कि वो कामरान को तेरे साथ खेलने से मना नहीं करती और बचपन में एक साथ खेलने की वजह से तुझ में उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई और सुन, शऊर तक पहुंचने तक वह तेरा दीवाना हो गया और 15-16 साल की उम्र में तुझ पर जो रूप चढ़ा वो अच्छे अच्छे मर्दों की पार सही ठिकाने लगाने के लिए काफ़ी था। और कामरान को कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर भेज दिया गया और जब भी वो गांव लौटता तुझसे मिले बिना न रहता। इस दौरान तेरे बाप दिलबर पर एक विपदा आ पड़ी और जिम्मेदार कायम शाह के सबसे छोटे भाई इज्जत शाह के हाथों एक नौजवान औरत का कत्ल हुआ और इज्जत शाह उस पर आशिक था। वो उस पर तवज्जो न देती थी, वो औरत कहीं और मतवज्जा थी और बस इतना ही जुर्म था उस नौजवान औरत का और नूरा का। और इज्जत शाह ने नूरा के घर जाकर अपने बंदों की मदद से उसे चारपाई से बांधा और उसे बेइज्जत किया। रसों से बंधी नूरा पर उसने तेजाब फेंका और चेहरा ही नहीं उसका पूरा जिस्म तेजाब से झुलसा दिया और वो मर गई। और ये सब कार्रवाई करने के बाद अपने बंदों के साथ अपनी हवेली जाने की बजाय अपने बड़े भाई हाकम शाह की हवेली पहुंच गया और उसके साथ सामने इकरार जुर्म कर लिया। और ये वारदात छुपने वाली ना थी। ज़रूरी था कि इज्जत शाह की जगह किसी और की गिरफ्तारी दे दी जाए और कुर्रा फाल तेरे बाप के नाम निकला और कायम शाह ने एक माकूल रकम देकर उसे कुर्बानी का बकरा बना दिया और उसने थाने जाकर इकरार जुर्म कर लिया। मोटी रकम के एवज पुलिस ने उस जाली मुजरिम को कबूल कर लिया और मुकदमा चला और उसे सजाए मौत हो गई। कामरान को जब इस वारदात का पता चला कि उसके बाप ने अपने भाई को बचाने के लिए रेशमा के बाप को कुर्बानी का बकरा बना दिया तो उसे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन वह अपने सख्त मजाज बाप के सामने कुछ न बोल सका। अब तुम दोनों के दरमियान कौलो इकरार हो चुका था और तेरी माँ पीपीयू को जब तेरे और कामरान के बारे में मालूम हुआ तो वो काम कर रह गई और वो कायम शाह से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो किसी सूरत तुझे कबूल ना करता और तब तेरी माँ ने ना सिर्फ हवेली बल्कि ये इलाका ही छोड़ देने का फैसला किया। और जब तुझे पीनों का इरादा मालूम हुआ तो तूने कामरान को बताया कि तू बहुत जल्द उसे दूर कर दी जाएगी और कामरान तुझे हाथ से निकलते देखकर तड़प उठा और जोशे जवानी में अपने बाप से जिक्र कर दिया कि वो तुझसे शादी करना चाहता है। और कायम शाह को बेटे की इस घटिया बात पसंद पर शदीद गुस्सा आया और उसके सामने अकलौता और लाडला बेटा था और गुस्से की सूरत में वह जोशे जवानी में जो कुछ भी कर सकता था। लिहाजा शातिर कायम शाह ने उसको मामले को इंतहाई तदब्बर से निपटाने का फैसला किया और जानते ही उसने अपने बेटे से क्या कहा। और माई पंखी सांस लेने के लिए रुकी। मुसलसल बोलने की वजह से उसका सांस चढ़ने लगा था। नहीं, मुझे क्या मालूम, अनारा ने कहा। अच्छा, मैं बताती हूँ। और माई पंखी बोली, और इस वक्त तू कहाँ है? अम्मा, मैं तेरी कहानी के मुताबिक सफ़र कर रही हूँ और मैं कुछ ही देर देख रही हूँ जो तू मुझे सुना रही है। चल फिर ठीक है, सुनती जा और देखती जा। और माई पंखी का सांस दुरुस्त हो चुका था। उसने आगे की दास्तान सुनानी शुरू कर दी और कायम शाह ने अपने बेटे की बात सुनकर बड़े नरम लहजे में कहा कि बेटा तो फिक्र ना कर, जहाँ तू चाहेगा वहाँ तेरी शादी हो जाएगी और उसके बाप का हम पर एहसान है और उसने हमारे लिए कुर्बानी दी है, तो फिर हम उसकी लड़की की खातिर क्यों कुर्बानी नहीं दे सकते। और बेशक वह हमारे नौकर चाकर हैं, पर हैं तो इंसान। और बाप के ख्यालात सुनकर कामरान बड़ा शादमान हुआ और वह दौड़ा दौड़ा तेरे पास आया और तुझे खुश खबरी सुनाई कि तू सुनकर दीवानी हो गई। जब तूने ये बात अपनी माँ पीनो को बताई और वो खुश होने की बजाय फिक्रमंद हो गई। इलाका छोड़ने का अज़म मजीद मजबूत हो गया और पीनो ने अपने भाई को बुला भेजा ताकि यहाँ से निकलने में आसानी रहे। लेकिन इससे पहले तेरा मामू आता कामरान के बाप कायम शाह ने तेरा डेथ वारंट जारी कर दिया और तुझे रास्ते से उठा लिया गया। कायम शाह के फार्म हाउस के वीरान गोशे में तेरी कब्र खोदी गई और तुझे नशा आवर दवा पिला दी गई और जब तुझ पर गहरी नींद तारी हो गई तो तुझे बेहोशी की हालत में कब्र में फेंक दिया गया। फिर तेरी कब्र को पत्थरों से भरकर मट्टी बराबर कर दी गई और वो कामरान से कह दिया कि तुम इलाका छोड़ गए। और कामरान को तेरे साथ गहरा लगाव था। उसने तुझे बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन तू मनो पत्थरों तले दफन थी, कैसे मिलती। अम्मा अम्मा, और नारा की अचानक घुटी घुटी आवाज सुनाई दी। हाँ, क्या हुआ? माई पंखी ने पूछा। अम्मा, मेरा दम घुट रहा है, मुझे वापस बुला और जल्दी कर, नारा चीखी। बुलाती हूँ, 1 मिनट रुक, माई पंखी ने कहा और फिर उसने तेजी से कुछ पढ़ा। पहले घर की तरफ देखकर फूंक मारी और जोर से बोली, चल रही और 2 कदम उल्टे पांव चल।
अनारा ने बगैर मुड़े 2 कदम पीछे रखे और एकदम उसे झटका सा लगा और जब सर उठाया तो वो खुद को पहले घर में पाया। माई पंखी ने उसे सामने देखकर चांदी का तावीज अपने गले में डाला और उस पर शदीद किस्म की थकन तारी थी और वो बड़ी मुश्किल से उठी और चारपाई पर जा लेटी और बोली, अंजू मैं थक गई हूँ, अम्मा मैं आती हूँ। और नारा पहले घर से निकली और वह भी मुकम्मल तौर पर होशो हवास में ना थी। उसे चक्कर आया और उसने खुद को संभाला और मई पंखी के साथ चारपाई पर बैठ गई और बोली, अम्मा क्या तेरा सर दबा दूं? हाँ अंजू दबा। और मई पंखी ने फौरन कहा, और बड़ा कठिन होता है ये सफ़र। अनारा जवाब में कुछ न बोली और खामोशी से उसका सर दबाने लगी। अनारा कभी मुकम्मल तौर पर सांस बहाल ना हुआ था और वह लंबे और गहरे सांस ले रही थी। और जब मई पंखी ने उसे कब्र में फेंके जाने और पत्थरों में जिंदा दबाने की रुदात बयान की तो उसे लगा जैसे वह कब्र में मौजूद है और सांस घुटने की कैफियत से दो चार है। और अगर वह मई पंखी को दम घुटने का ना बताती तो मुमकिन था कि वह मौत के ज़ियत से गुजर जाती। लेकिन ये सोचकर कि उसे जिंदा पत्थरों में दबा दिया गया था और वह दबे दबे मौत से हमकिनार हो गई थी, उसका दिल कांप रहा था। फिर उसे कामरान का ख्याल आया कि क्या बांका सजीला नौजवान था और कैसा टूट कर चाहता था वो उसे, और ना जाने उस पर क्या गुजरी होगी और जाने कितने अरसे तक वो उसे तलाश करता रहा होगा। बस अनारा। और अचानक मई पंखी ने उस पर हाथ रखा और जा रात गहरी हो गई, अब अंदर चली जा। अच्छा अम्मा जाती हूँ। और नारा चारपाई से उठते हुए बोली, बत्ती बंद कर जाना। मई पंखी ने दीवार में लगे बल्ब की तरफ इशारा किया और अनारा ने लाइट बंद की और अंदर कमरे में चली गई। अच्छा अम्मा ने उसे पहले घर दिखाया था और फिर अभी 6 घर और बाकी थे और अम्मा ठीक ही कहती थी कि वह जन्म जली है, अभागन है। आबर ने अंदर का जो मंजर देखा वो उसके वजूद में शोले भड़काने के लिए काफ़ी था। मलका सोफे पर पूरे इत्मीनान से लेटी थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। दिलशाद यूनुस उसी सोफे पर मौजूद था और वह जिस कार्रवाई में मसरूफ था वो किसी भी शोहर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर दोनों ने बीक वक्त दरवाजे की तरफ देखा और दिलशाद यूनुस एक अजनबी नौजवान को दरवाजे पर खड़ा देखकर शदीद गुस्से में मुब्तला हो गया और वह चीख कर बोला, कौन हो तुम? मलका की उस अजनबी नौजवान पर नजर पड़ी तो वह सांस लेना भूल गई और उस पर घड़ों पानी फिर गया। और वह अजनबी नौजवान कोई और नहीं उसका शोहर था और चंद लम्हों के मंजर ने आबर पर 7 तबक रोशन कर दिए थे। और मलका क्या थी, उस मुलाजमत की आड़ में यहाँ क्या हो रहा था, और हर चीज उस पर साफ और वाज़ेह हो गई। अब यहाँ रुकना बेकार था और वह फौरन वापसी के लिए पलटा और दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वह बाहर निकला सामने रीटा खड़ी थी। उसने कहर आलूद नजरों से आबर को घूरा और सख्त लहजे में बोली, तुम बिला इजाजत अंदर कैसे गए और कौन हो तुम? हर शख्स उसे पूछ रहा था कि कौन हो तुम, लेकिन अपने बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा था। और वो कौन थे नंग खानदान। आबर का जी चाहा कि उस औरत के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार कर बताए कि वो कौन है, लेकिन अपनी शिनाख्त कराने का फायदा क्या था। और वो फाशिया तो सोफे पर पड़ी थी और अपनी इज्जत उतार कर अब किसी को कुछ बताना अपनी जिल्लत करवाना था। उसने कुछ ना कहा। वो जारहाना अंदाज में उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जहां से वो उस जहन्नम में दाखिल हुआ था और रीटा उसके पीछे लपकी और दिलशाद यूनुस ने अपना दरवाज़ा खोला। और जब उसने नौजवान को रीटा के आगे पीछे भागते देखा तो उसने चीख कर कहा, ये भागने ना पाए। और रीटा ने बाहर निकलकर शोर मचाया, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। और दिलशाद यूनुस ने फौरन सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट किया और नतीजा ये निकला कि वह धर लिया गया। चंद मिनटों के बाद ही उसे दिलशाद यूनुस की अदालत में पेश कर दिया गया और रीटा ने सिक्योरिटी गार्ड को दरवाजे पर अलर्ट रहने को हुक्म कहा। और जब वो बाहर निकल गए और दरवाज़ा बंद हो गया तो दिलशाद यूनुस ने उस लड़के का सर से पांव तक का जायजा लिया। वो एक खूबसूरत नौजवान था और अपने चेहरे मोहरे से शरीफ दिखाई देता था। यूं उसने अभी तक कोई गैर शरीफाना हरकत की भी नहीं थी। और वह अंदर आया तो उसने देखा और फिर फौरन ही पलट गया। दिलशाद यूनुस की तजर्बाकार नजरों ने उसकी शख्सियत का एक्सरे किया और सर झुकाए खड़े उस शरीफ ज़ादे से मुखातब हुआ, बैठ जाओ। लेकिन आबर के जिस्म में कोई हरकत ना हुई और वह सर झुकाए खड़ा था। और वो क्या नजरें उठाता और नजरें उठाकर क्या देखता, क्या उस बेवफा को देखता जिसे बिना जाने मर गया था और जिसके लिए उसने अपना घर, अपने वालदैन और चाहने वाली बहन त्याग दी थी। अब सर उठाने को क्या रह गया था और मलका ने उसका सर झुका दिया था। उसे ख्याल था कि मलका ने उसे पहले ही दिन खबरदार किया था कि मर मिटने से पहले
मुझे जान तो लो कि मैं कौन हूं, लेकिन उसे परवाह कहाँ थी। बस अपनी मोहब्बत को अहम जाना, और जो तुम जो भी हो मेरी हो, तो आबर अली निसार अब भुगतो। रीटा ये अंदर कैसे आया? और दिलशाद यूनुस ने रीटा को घूर कर देखा। जी वो मैं कमरे में मौजूद ना थी, वॉशरूम में थी, रीटा ने जवाब दिया। जी हाँ जी, आप बोलें। और दिलशाद यूनुस ने आबर को पूछा, आप कौन हैं? मैं कौन हूं इनसे पूछ लें। और आबर की आवाज में लर्जश थी। किससे पूछूं? रीटा से। और दिलशाद यूनुस ने वजाहत चाही। जी नहीं, इनसे। और आबर ने मलका की तरफ देखे बगैर इशारा किया, और वह सोफे पर बैठी थी। ओह अच्छा, तो तुम मलका की तलाश में अंदर आ गए थे। और दिलशाद यूनुस को बात की तह तक पहुंचने में देर न लगी, और फिर वो मलका की तरफ मुड़ा और उससे मुखातब होकर बोला, मलका क्या ये तुम्हारा मंगेतर है? नहीं सर। और मलका ने सपाट लहजे में जवाब दिया। फिर कौन है? और क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार? जी सर, और मेरा गहरे रिश्तेदार है, ये मेरा शोहर हैं। मलका ने दिलशाद यूनुस की आंखों में आंखें डालकर मजबूत लहजे में कहा, और ये बताते हुए अचानक उसके मिजाज में तब्दीली आई थी। तुम शादीशुदा हो? और दिलशाद यूनुस के लिए ये इंकशाफ था, और वह हैरान रह गया। जी सर। और मलका ने साफ और वाज़ा लहजे में कहा, लेकिन मुझे तो तुम्हारे बाप ने बताया था कि अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई और होने वाली है, तो क्या उसने झूठ बोला था? ये तो वही बता सकते हैं। और मलका ने जवाब देने से इनकार कर दिया। और तुमने जब इस ऑफिस को ज्वाइन किया उस वक्त तुम शादीशुदा थी? जी सर, और मेरी शादी हुए कई माह हो चुके हैं। अच्छा ठीक है। दिलशाद यूनुस को यकदम गुस्सा आ गया। तो तुम और तुम्हारा बाप सब फराड हो, और मैं इंतकाम लूंगा, और मैं तुम्हारे शोहर को हथकड़ी लगवा दूंगा। और फिर दिलशाद यूनुस ने वही किया जो कहा था। उसने पुलिस बुलाई और अपना असर शौक और रकम इस्तेमाल की, और पुलिस ने इक़्तिदाम कत्ल के इल्ज़ाम में उसे हथकड़ी लगा दी और आबर को थाने लेकर चले गए। आबर के जाने के बाद मलका अपनी मेज़ पर बैठी रोती रही, और रीटा दिलशाद यूनुस के कमरे में थी। और कुछ दिन के बाद दोनों एक साथ बाहर निकले, और दिलशाद यूनुस ने मलका की तरफ देखना गवारा न किया, और वह सीधा निकलता चला गया। दिलशाद यूनुस के जाने के बाद रीटा मलका के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े गैर जज्बाती अंदाज में किसी रिपोर्ट की तरह बोली, खेल खत्म हो गया, जाओ अपने घर, और इदारे को अब तुम्हारी जरूरत नहीं रही। मलका जो मेज पर पेशानी रखे रो रही थी, उसने अपना सर उठाया और रीटा की तरफ देखे बगैर कहा, ठीक है। और फिर उसने दुपट्टे से भीगी आंखें पूंछी और वॉशरूम में जाकर अच्छी तरह मुंह हाथ धोया, और बाहर आकर अपने बैग से मोबाइल फ़ोन निकाला और कॉल करने लगी। रीटा उसको बगौर देख रही थी और अंदाज़ा नहीं लगा पा रही थी कि वो किस को कॉल कर रही है। और दिलशाद यूनुस उसे हुक्म दे गया था कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इसे दफ्तर से बाहर कर देना, और मलका ने कोई हीलो हिज्जत नहीं की थी। वो जाने की तैयारी कर रही थी, और फिर किसी जोर ज़बरदस्ती की कोई गुंजाइश कहाँ थी। कॉल मिलने पर मलका ने जल्दी से कहा, अम्मी मैं मलका बोल रही हूँ, आप अब्बू से कहें कि वो मुझे ऑफिस लेने आ जाएं फ़ौरन। क्या हुआ मलका, खैर तो है? और चांदनी ने उसकी आवाज़ में घबराहट का अंसर महसूस करके पूछा। जी अम्मी जल्दी करें, और मैं अब्बू को ऑफिस के दरवाजे पर मिलूंगी। और मलका ने इतना कहकर फ़ोन ऑफ कर दिया, मोबाइल बैग में डाला और रीटा की तरफ एक नज़र देखा, और ये कहती हुए उसके सामने से गुजर गई, अच्छा मैं चलती हूँ। और रीटा फ़ौरन खड़ी हो गई, और वह शायद उसे अलविदाई जुमला कहना चाहती थी, लेकिन मलका ने उसको मौका ना दिया, और तेजी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और पीछे दरवाज़ा धड़ से बंद कर दिया और ऑफिस के बड़े दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। चांदनी को मलका के फ़ोन से बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि वह किसी मुश्किल में है, और फ़ौरन अपने कमरे से निकली और डॉक्टर साहब कहती हुई लाउंज की तरफ बढ़ी। और वह डॉक्टर साहब कुछ उसे अंदाजे से पुकार रही थी जैसे अस्पताल में हो और मरीज़ की हालत अचानक ख़राब हो गई हो। डॉक्टर ने शायद मैं घर में होता तो ज़्यादातर टीवी के सामने लाउंज में बैठा होता, लेकिन इस वक्त वह लाउंज में ना था, अलबत्ता टीवी चल रहा था और वहाँ फाखरा बैठी थी। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? चांदनी ने उससे पूछा। अम्मी अबू ड्राइंग रूम में हैं और कोई आया हुआ है, फाखरा ने बताया। और आबर अम्मी अपने कमरे में होंगे और मैंने देखा नहीं, फाखरा बोली। फाखरा ज़रा अपने अब्बू को बुला ला, और चांदनी ने हदायत की। अम्मी खैर तो है? हाँ देख ऐसा करना कि डॉक्टर साहब को कमरे में भेज देना। और चांदनी ने अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। चांदनी अभी बेड पर बैठी थी कि डॉक्टर नौशाद कमरे में दाखिल हो गया और बोला, क्यों बुलाया है? आप फौरन मलका के ऑफिस चले जाएं, उसे ले आएं। और मुझे वह परेशान दिखाई दे रही थी, और चांदनी ने फिर उसके फ़ोन की तफसील बताई। अच्छा मैं उससे पूछता हूँ क्या मामला है। और डॉक्टर नौशाद ने जेब से मोबाइल निकालते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। और जब वो गाड़ी में मलका के ऑफिस की बिल्डिंग के सामने पहुंचा तो उसने मलका को सीढ़ियों पर बैठे पाया,
اور وہ عجیب سے انداز میں سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی اور میک اپ سے آری پریشان چہرہ اور آنکھوں میں ویرانی جیسے برسوں کی بیمار ہو۔ کیا ہوا ملکہ، یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ ڈاکٹر نوشاد نے پوچھا۔ ابو مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، مجھے گھر لے چلیں، اور وہ مشکل بولی۔ اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تو ہسپتال لے چلوں؟ ڈاکٹر نوشاد نے پوچھا۔ نہیں، گھر، اور ملکہ نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نوشاد نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا، ورنہ وہ گر جاتی، اور وہ سہارا دے کر گاڑی تک لایا اور گاڑی میں بٹھا کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ملکہ گھر آنے تک گمسم بیٹھی رہی اور وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ ڈاکٹر نوشاد نے اپنے برابر بیٹھی ہوئی ملکہ کو کئی بار کن اکھیوں سے دیکھا، لیکن اسے بلوانے کی کوشش نہ کی۔ گھر آ کر وہ چاندنی کے کمرے میں پہنچی اور اس نے دروازہ بند کیا اور ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چاندنی نے اسے اپنے کلیجے سے لگا لیا اور اسے رونے دیا۔ ملکہ روتے روتے بے حال ہو گئی اور چاندنی نے سائے ٹیبل پر رکھی بوتل سے پانی نکال کر اسے پلایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ کافی دیر کے بعد اس کی حالت سنبھلی تو اس نے سب سے پہلے جو بات کہی وہ یہ تھی، امی آبر کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ چاندنی پولیس کا نام سن کر سناٹے میں آ گئی اور اس کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ آبر جیسے سیدھے سادے لڑکے کو پولیس پکڑ کر لے جا سکتی ہے۔ کس جرم میں؟ قتل کے جرم میں، اور ملکہ نے انکشاف کیا۔ اور اس نے کس کو قتل کیا ہے؟ امی کسی کو نہیں، اور امی جو خود مقتول ہو وہ کسی کو کیا قتل کرے گا؟ اور ملکہ نے آنسو بھری آنکھوں سے کہا، اور پھر روتے سسکتے دفتر میں جو کچھ ہوا وہ منو ان چاندنی کے گوش گزار کر دیا۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ اور چاندنی افسردہ ہو کر بولی، ہاں امی، وہ بے قصور مارا گیا۔ دلشاد یونس کو آخر کس بات پر غصہ آ گیا؟ اور چاندنی نے سوال کیا۔ ابو کی غلط بیانی پر، اور شادی شدہ ہو کر کنواری کیوں ظاہر کیا؟ ملکہ نے بتایا۔ تو فکر مت کر، اور ڈاکٹر صاحب کے پولیس کے اعلیٰ افسران سے تعلقات ہیں، وہ کھڑے کھڑے آبر کو تھانے سے لے آئیں گے۔ اور چاندنی نے اسے تسلی امید لہجے میں کہا، اور میں انہیں جا کر ساری بات بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے جی امی، اور ملکہ نے کہا۔ جب چاندنی ڈرائنگ روم میں پہنچی تو مہمان جا چکا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو نوشاد کو وہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور جو کچھ اپنی بیٹی سے سنا تھا ڈاکٹر نوشاد کو بتا دیا۔ اچھا، اور ساری بات سن کر ڈاکٹر نوشاد کے جسم میں بجلی سی بھر گئی۔ اس نے میز پر رکھا ہوا موبائل اٹھایا اور کسی کو فون کرنے لگا۔ جب وہ متعلقہ تھانے پہنچا تو ایس ایچ او اپنے کمرے میں موجود تھا، اور ڈاکٹر نوشاد کو بے دھڑک کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر ایس ایچ او ناصر کو یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ کوئی اونچی چیز ہے، اور اس لیے اس نے ڈاکٹر نوشاد کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، جی فرمائیے۔ ڈاکٹر نوشاد جو کمرے میں داخل ہوتے ہی موبائل پر مصروف ہو گیا تھا، اس نے ایس ایچ او کی جی فرمائیے پر قطعاً توجہ نہ دی، اور کال ملنے پر اس نے بس اتنا کہا، سر میں ایس ایچ او اور صاحب کے کمرے میں آ گیا ہوں۔ ادھر سے کہا گیا اور انہیں موبائل دیں۔ جی اچھا، اور ڈاکٹر نوشاد نے موبائل ایس ایچ او ناصر کے تجانب بڑھاتے ہوئے کہا، سر ایس پی شفیق راجپوت آپ سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں۔ اور شفیق راجپوت کا نام سن کر ناصر کی جان نکل گئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس سے کہاں غلطی ہوئی، اور موبائل کان سے لگاتے ہی روبدار آواز سنائی دی، ایس ایچ او ناصر، اور مجھے فوراً فون کریں۔ ناصر نے اپنی لینڈ لائن سے شفیق راجپوت کا نمبر ڈائل کیا۔ اب کسی جیلی کال کی گنجائش نہیں رہی تھی، اور شفیق چاہتا تو ڈاکٹر نوشاد کے موبائل کے ذریعے احکامات دے سکتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ناصر کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ رہے اور یہ شبہ تاخیر کا سبب نہ بنے۔ جی سر، حکم۔ اور ایس ایچ او ناصر نے لائن ملتے ہی انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، ناصر صاحب یہ بتائیں کہ کسی شوہر کا اپنی بیوی سے اس کے دفتر میں جا کر ملنا کیا قابل تعزیز ہے؟ اور شفیق راجپوت نے بڑے سکون انداز میں سوال کیا، ہرگز نہیں سر۔ اور ناصر ابھی تک اس سوال کی تہہ تک نہ پہنچ سکا تھا۔ آپ نے کسی آبر نامی لڑکے کو گرفتار کیا ہے؟ جی سر۔ اور ناصر نے مری ہوئی آواز میں کہا، اور اب وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا تھا۔ بتانا پسند کریں گے کہ کس جرم میں؟ اور شفیق راجپوت نے پوچھا۔ سر وہ کوئی اور ہوتا تو وہ بے دھڑک جواب دیتا، اور اقدام قتل کے جرم میں، لیکن یہاں سامنے ایس پی تھا، اور بھلا دائی سے بھی کبھی پیٹ چھپا ہے، اور پھر چھپانے کا فائدہ؟ میں بتا دیتا ہوں کہ تم نے اقدام قتل کے الزام میں اسے گرفتار کیا ہے، اور اعلیٰ قتل بھی برآمد کروا دیا ہے، اور یہ کام تم نے دلشاد یونس جیسے عیاش شخص کی خواہش پر کیا۔ اور اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس معصوم لڑکے کو فی الفور چھوڑ دو، اور جو رقم تم نے دلشاد یونس سے لی ہے وہ واپس جا کر اس کے منہ پر مار آؤ، اور اسے میری طرف سے پیغام دینا کہ دفتر میں بیٹھ کر جو کچھ کرتا ہے ہمیں اس کا اچھی طرح اندازہ ہے۔ بہتر ہوگا کہ وہ عیاشی کا ٹھکانہ بدل لے، ورنہ میڈیا کے ساتھ چھاپا پڑواتے مجھے دیر نہ لگے گی۔ اور ایس ایچ او ناصر، کیا تم نے میری بات سمجھ لی؟
शफीक राजपूत ने जवाब का मौका फराहम किया। जी सर, मैं समझ गया, अच्छी तरह समझ गया, आप बेफिक्र हो जाएं। और नासिर ने जल्दी से कहा, और देखो, उस लड़के से माफ़ी मांगना हरगिज़ ना भूलना, और तुमने उस मासूम लड़के के साथ बहुत जुल्म किया है, और उस वक्त से डरो जब तुम्हारे बेटे के साथ कोई ऐसा ही जुल्म करे। ओके। और शफीक राजपूत ने फ़ोन बंद कर दिया। रिसीवर रखकर नासिर ने गहरा और ठंडा सांस लिया, और तूफान महज गरज चमक के साथ गुजर गया था। उसने बरस कर कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, और वो फौरन एक्शन में आ गया। पहले उसने डॉक्टर निशात से पूछा, मोहतरम, वो लड़का आपका क्या है? क्या बेटा? और वह मेरे बेटा जैसा दामाद है। पहले तो मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि मैं किसी गलतफहमी का शिकार हो गया था, और मैं आपके दामाद से भी माफ़ी चाहूँगा। ये कहकर वो उठा और मैं उसे लेकर आता हूँ। आबर को आज़ाद होने में 5 मिनट से ज़्यादा ना लगे, और डॉक्टर नौशाद आबर को लेकर थाने से निकल आया। आबर ने दफ्तर में जो कुछ देख लिया था, उसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ था, वो किसी गैरतमंद इंसान के लिए डूब मरने के मुतरादिफ था। डॉक्टर नौशाद की समझ में नहीं आ रहा था कि वह आबर से क्या कहे और किस तरह कहे। गाड़ी के करीब पहुंचकर डॉक्टर नौशाद ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और अपने लहजे में सारे जहां की मोहब्बत भरकर बोला, आओ बेटा, घर चलें। और जवाब में आबर ने 2 टोक अंदाज में जो कुछ कहा, और डॉक्टर नौशाद की होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था। अनारा के अंदर जाते ही माई पंखी उठकर बैठ गई, और रात में वो बिल्कुल ना सोई थी। सोने का वक़्त सुबह का ही था, और कव्वे की यखनी पीकर उस पर ऐसी मदहोशी तारी होती थी कि वो खुद को रोकना चाहती तो रोक ना सकती, और उस पर गहरी नींद का गलबा होता और नशा तारी होता, या वह बेहोश हो जाती थी और कुछ पता ना था। बस वो यखनी पीकर 2-2.5 घंटे के लिए दुनिया से किनारा कर जाती और किसी और ही जहां में पहुंच जाती। इस वक्त रात के 2:30 बजे थे, और सहन में तारीकी छाई थी। नीम के दरख्त पर भी खामोशी मुसल्लत थी, और माई पंखी ने 40 फेरे अपने सहन के लगाए, और वो फेरों के दौरान कुछ पढ़ती जाती थी, और एक चक्कर पूरा करके वो आसमान की तरफ मुंह उठाती और ज़ोर से आवाज़ लगाती, आ बग्गा, और ये नारा बुलंद करके वह फिर चक्कर काटने में मशगूल हो जाती। जब 40 फेरे मुकम्मल हो गए तो उसने सहन में पड़ी हुई खड़ी चारपाई को उठाकर खड़ा किया, और फिर उसे दीवार से हटाकर बीच सहन में लाई, और कुछ पड़ते हुए चारपाई ईंटों के फर्श पर उलट दी। अब चारपाई के पाए ऊपर हो गए थे, और ऊपर का हिस्सा ज़मीन से लग गया था। माई पंखी ने उल्टी पड़ी चारपाई के गिरद चक्कर लगाने शुरू किए। वो कुछ पढ़ती जाती और चक्कर लगाती रह जाती, और हर चक्कर के अख्ताम पर नारा मस्ताना बुलंद करती, आ बग्गा। और 7 चक्कर पूरे करने के बाद वो उल्टी चारपाई पर इस तरह बैठ गई कि उसके दोनों हाथ पाइंती के पायों पर थे। दोनों पाए पकड़ने के बाद उसने जोर जोर से झूमना शुरू कर दिया, और वो अब एक खास अंदाज से झूमती जाती थी, और कुछ बोलते हुए दोनों हाथों से एक पाए को पकड़ती और फिर जोरदार आवाज में पुकारती, आ बग्गा। और 11-12 बार ये अमल दोहराने के बाद माई पंखी युगा के अंदाज में बैठ गई, और उसने आंखें बंद कर लीं। और कुछ देर गुजरी थी कि उसे चारपाई लड़ती हुई महसूस हुई, और फिर उसे एक बारीक सी आवाज़ सुनाई दी, ले आ गया बग्गा। ये सुनते ही माई पंखी की रग रग में खुशी सरायत कर गई, और वो खुशी से सरशार होकर बोली, तो आ गया बग्गा, और तेरी बड़ी कृपा। और माई पंखी के सामने सफ़ेद चमकीला धुआं नमूदार हो रहा था। उस धुएं ने एक इंसानी होले की शक्ल इख्तियार की, और फिर मंजमद हो गया। अब तो उल्टी खाट का पाठ पड़ेगी, तो मैं कैसे रुकूंगा, और मुझे आना ही होगा। सफ़ेद चमकीले धुएं के मंजमद ह्योले से आवाज़ आई, और वो अब चारपाई की पट्टी के नज़दीक था, और लग रहा था जैसे वो खड़ा हो। माई पंखी ने चारपाई की पट्टी पर अपना सर रख दिया, और अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए, जैसे वो माथा टेकते हुए उसके चरण छूना चाहती हो। हाँ, पंखी बोली, क्यों बुलाया? और सफ़ेद चमकीले ह्योले से आवाज़ आई, बस तुझे देखने को जी चाह रहा था। और माई पंखी ने हंसकर कहा, औरतपन छोड़ और सीधी साफ बात कर, जल्दी बोल। बग्गा नाराज हुआ, और उसमें अंजू का क्या करूं? माई पंखी ने फौरन मकसद पर आ गई, क्यों, क्या हुआ? और बग्गा ने पूछा, अबे वो तो रोज़ ही पूछने लगी है अपने बारे में, और मैं कब तक उसे इधर उधर की बातें करके बहलाऊं? बग्गा, सच तो यह है कि मुझे उस पर तरस आता है, और उस बेचारी को कभी सुख मिला ही नहीं। और माई पंखी ने उदास लहजे में कहा, देख पंखी, हर मनुष्य का सुख अलग होता है, और हम आग में खुश रहते हैं और कोई पानी में खुश रहता है। किसी को हवा चाहिए और कोई दौलत पाकर प्रसन्न होता है, और कोई सब कुछ खोकर इत्मीनान पाता है। और तू उस पर तरस ना खा, और हमारे लिए बहुत कीमती है। तू अच्छी तरह जानती है कि कितने जतन से तूने उसे हासिल किया है। और बग्गा ने माजी याद दिलाया।
बग्गा वो मेरी मंजिल नहीं, मुझे आगे जाना है। और माई पंखी ने अपना अज़म ज़ाहिर किया। फिर क्या चाहती है तू? क्या उसे आज़ाद करना चाहती है? और मंजमन चमकीले धुएं से आवाज़ आई, हाँ यही जीत तो चाहता है। माई पंखी ने दिल में छुपी बात ज़ाहिर की। अभी उसका वक्त नहीं आया और तू खुद को संभाल, उस पर मेहरबान ना हो। और बग्गा ने तंबी की, बग्गा इतनी इजाज़त तो दे दे कि मैं उसका जीवन उस पर खोल दूं। और मुझसे इजाज़त ले रही है जबकि तू उसे घर दिखा चुकी है। और बग्गा ने किसी कदर गुस्से से कहा, हाँ मुझसे गलती हुई और मेरे दिल में दिया आ गई थी। दिया, रहम, मुआफ़ी और ये और इस तरह के शुबद हमारे यहाँ ममनू हैं। और क्या तू नहीं जानती हम आग वाले हैं और ये लफ्ज़ हमें ज़ेब नहीं देते। और घोड़े को घास से यारी नहीं करना चाहिए। बग्गा ने अपनी बारीक आवाज़ में उसे समझाने की कोशिश की। बग्गा तू जानता है कि मैं कैसी हूँ। और माई पंखी बोली, इसीलिए बग्गा तुझे समझा रहा है कि ऐसी ना बन कि तू किसी मुश्किल में फंस जाए। और बग्गा ने कहा, चल तेरी खुशी और अगर इसी में है और उसके जीवन पर उसका खोल दे तो खोल दे और तुझे इजाज़त देता हूँ, लेकिन उसे आज़ाद करने की गलती ना करना। और फिर कहता हुआ कि उसका वक़्त नहीं आया, जब आएगा तो तुझे बता दूंगा। और ठीक है, कोई और बात है या मैं चलूँ? ठीक है बग्गा तू जा और तेरी मेहरबानी के तू आया। और माई पंखी ने एक मरतबा फिर उसके सामने माथा टेक कर चरण छुए और उसी वक्त सफ़ेद चमकीले होले में हरकत हुई और फिर वह धीरे धीरे मादूम होता गया। और जब वह मुकम्मल तौर पर गायब हो गया तो माई पंखी पुरमसरत अंदाज में उल्टी चारपाई से उठी, उसे सीधा करके दीवार के साथ लगाया और पुरसकून अंदाज में लेट गई। वो खुश थी कि बग्गा ने उसकी गलती को नज़रअंदाज कर दिया और अब वो पूरे इत्मीनान से अंजू का जीवन उस पर खोल सकती थी। अंजू का ख्याल आते ही उसने गर्दन मोड़कर कमरे के दरवाजे की तरफ देखा और वो उसे दिखाई ना दी। उसने सोचा कि वह अंदर सो रही होगी। आबर गाड़ी का खुला दरवाज़ा बंद करके फैसलाकुन अंदाज में बोला, अंकल मैं अब आपके साथ नहीं जाऊंगा। बेटा हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दे। और डॉक्टर नौशाद ने नौटंकी का आगाज़ किया, मुझे बेटा ना कहें और कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा सलूक नहीं करता और जैसा आपने किया। और आबर बड़े मुस्तहकम अंदाज में बोला, और मैं अब ये बात अच्छी तरह जान गया हूँ कि आपसे गलती नहीं हुई और आपने जो कुछ किया जानबूझकर और सोच समझ कर किया। बेटा गुस्सा मत करो। और डॉक्टर नौशाद ने खुश शामदाना लहजे में कहा, हमें माफ़ कर दो और मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। और ये कहते हुए उसके कदमों की तरफ झुका। छोड़ें ये ड्रामाबाजी। और आबर यकदम पीछे हटते हुए बोला, और जाएं अपनी बेटी के लिए कोई नया बास तलाश करें। होना तो ये चाहिए कि मैं सजा के तौर पर मलका को तलाक ना दूं, लेकिन मैं जानता हूं कि उससे आपकी सेहत पर कोई असर ना पड़ेगा और इज्जत मेरी खराब होगी। और मेरे हक में यही बेहतर है कि मैं उसे यहीं खड़े खड़े आज़ाद कर दूं और अपनी राह लूं। नहीं बेटा ऐसा मत करना। और डॉक्टर नौशाद ने हाथ के इशारे से उसे रोकते हुए कहा, मैं जानता हूं कि वह तुमसे शदीद मोहब्बत करती है। ठहरो, मैं तुम्हारी उससे बात कराता हूं। और डॉक्टर नौशाद ने आबर के जवाब का इंतज़ार न किया और जेब से मोबाइल निकालकर खटाखट नंबर मिलाया और फ़ोन उठाए जाने का बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। जैसे ही मलका ने फ़ोन उठाया और डॉक्टर नौशाद ने बड़ी तेज़ी से कहा, मलका आबर साहब को समझाओ, ये तुम्हें तलाक दे रहे हैं। कहाँ हैं आप लोग? मलका ने पूछा। हम लोग थाने के बाहर खड़े हैं। और डॉक्टर नौशाद ने बताया। घर आए। और मलका ने बेकरारी से कहा, ये घर आने के लिए तैयार नहीं और तुम्हें तलाक देकर चले जाना चाहते हैं। और मलका इनसे बात करो। और डॉक्टर नौशाद की परेशानी दीदनी थी। डॉक्टर नौशाद ने मलका का जवाब सुने बगैर मोबाइल आबर की तरफ बढ़ा दिया। और आबर ने एक नज़र मोबाइल को देखा और वह अब किसी से बात करने के लिए तैयार ना था। और वह क्या बात करता? अब बात करने को रोका क्या गया था? जो छुपा था वह सामने आ गया था और हर चीज़ साफ और वाज़ेह हो गई थी और अब फैसले का वक़्त था। प्लीज़ आबर साहब। और डॉक्टर नौशाद ने बड़ी आर्जी से कहा और मोबाइल दोबारा उसके हाथ में देने की कोशिश की। ना चाहते हुए भी आबर ने मोबाइल फ़ोन हाथ में ले लिया और चंद लम्हे उसने अपने अंदर दबते तूफान को काबू में करने लगा। और जब उसने हेलो कहा तो उससे खुद अपनी आवाज़ अजनबी महसूस हुई। आबर घर आ जाएं और हम यहाँ बैठकर बात कर लेंगे। और मलका ने उसकी आवाज़ सुनते ही कहा, घर? कौन सा घर? और आबर के लहजे में गुस्से से ज़्यादा दुख था। आबर आपका अपना घर और जहाँ आप रहते हैं, मलका बोली। और मेरा तो कोई घर नहीं। औरत के बारे में कहा जाता है कि उसका कोई घर नहीं होता और मैं मर्द होकर ये बात कर रहा हूँ और ये बात कह रहा हूँ और सच कह रहा हूँ कि मेरा कोई घर नहीं। आबर ने जाने क्या कह रहा था और खुद उसकी समझ में भी नहीं आ रहा था।
आबर मेरे पास आ जाए, मैं वो मलका हूँ जिसके सर पर आपने मोहब्बत का ताज रखा था। अब वो मलका ना रही और ना ताज रहा, और मैं ना रहा और ना तू रही, और सब तबाह हो गया। और आबर के दिल से धुआं उठ रहा था। आबर मैं वह हूँ जिस पर आप मर मिटे थे। गलती इंसान से होती है, मुझसे भी हो गई, और आबर की जुबान पर सच्चाई थी। आबर मुझे तलाक ना देना और मेरा साथ ना छोड़ना, मैं तन्हा रह जाऊंगी। और मलका की आवाज़ में अल्तजा थी। मैं तुम्हें खुशी से तलाक नहीं दूंगा और मेरी तन्हाई का तुम्हें अंदाजा नहीं, पर अब ये दर्द जुदाई सहना ही होगा। आबर बोला, काश मैं तुम्हें जान लेता। और आबर घर पर तो आई और मैं अपने बारे में सब कुछ बता दूंगी, कुछ नहीं छुपाऊंगी। और मलका ने ऐसी बात कह दी कि आबर कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। उसने फैसला किया कि जो उसने दिल में ठान ली है वह अपनी जगह अटल है, लेकिन उसकी बात सुनने में क्या हर्ज है। कहीं ऐसा ना हो कि वह जिंदगी भर इसी पछतावे में मुब्तला रहे कि उसकी बात सुने बगैर उससे अलहदगी इख्तियार कर ली। मलका, ठीक है, मैं आता हूँ, लेकिन इतना याद रखना कि कोई बात झूठ ना हो। और अब मेरी बर्दाश्त आखिरी हदों तक पहुँच चुकी है। आबर ने मोबाइल ऑफ किया और गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल कर बैठ गया, और वो उस मकरूज शख्स के बराबर बैठना नहीं चाहता था। आबर को गाड़ी में बैठे देखकर डॉक्टर निशात की बातें खिल गईं, और वो खुश था कि उसकी बेटी ने काम दिखा दिया। लेकिन उसे ये अंदाज़ा ना था कि उसकी बेटी काम दिखाने नहीं बल्कि उसका काम तमाम करने जा रही है। आबर ने रास्ते में डॉक्टर निशात से कोई बात ना की और वो खामोश बैठा रहा। जब आबर डॉक्टर निशात के साथ घर में दाखिल हुआ तो यूं लगा जैसे किसी की मौत हो गई हो। लॉन्ज में कोई ना था और टीवी बंद था, और शाइस्ता के कमरे से एक डेक की आवाज़ नहीं आ रही थी। मलका अपने कमरे में थी और कमरे का दरवाज़ा खुला था, लेकिन जिसके इंतज़ार में यह दरवाज़ा खुला था वो अंदर ना आया। जब आबर को कोई टीवी लॉन्ज में मलका नज़र न आई और उसने ड्राइंग रूम का रुख किया और एक सोफे पर बैठ गया। वो अब इस घर का मकीन ना था, मेहमान था। और डॉक्टर निशात ने कोशिश की कि वो मलका के पास चला जाए, लेकिन वह टस से मिस ना हुआ, और मजबूरन डॉक्टर निशात को मलका को ड्राइंग रूम में भेजना पड़ा। मलका ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो आबर ने मुंह फेर लिया। उसने दरवाज़ा बंद किया, मुतकफल किया, और उसके बराबर बैठने की बजाय सामने वाले सोफे पर नशस्त इख्तियार की। आपका मुंह फेरना बजा, और मैं इसी काबिल हूं कि मुझसे नफरत की जाए। मैं जानती हूं कि आपके बराबर बैठने के काबिल नहीं रही, और इसलिए आपके बराबर बैठने की जुर्रत ना कर सकी। मैं सजावार हूँ, गुनाहगार हूँ और नाकाबिले मुआफ़ी हूँ। और मलका की आवाज़ में शदीद दुख बोल रहा था, और ये जाने बगैर कि आबर उसकी बात का क्या असर हो रहा है, अब वो अपनी धुन में कहे जा रही थी। आबर, काश आपने मुझसे शादी ना की होती, और काश आपने मेरे लिए अपने वालदैन, अपना घर ना छोड़ा होता, और आज मैं जिस एहसास जुर्म में मुब्तला हूँ वो ना होती। मलका, तुमने मुझे जिस मकसद के लिए बुलाया है वो बयान करो। अगर तुम्हारे पास बताने को कुछ नहीं तो फिर मैं चलता हूँ, और मेरे पास वक़्त नहीं है। आबर ने उसकी बात काट कर कहा, सुनो आबर, फिर, और मैं अपने और उस घर के लोगों के बारे में जो कुछ जानती हूँ वो सब बताए देती हूँ। आबर, पहले तो ये जान लो कि डॉक्टर निशात मेरा सगा बाप नहीं। और आबर को यह सुनकर धचका सा लगा, लेकिन वो बोला कुछ नहीं। डॉक्टर निशात मेरा ही क्या, हम 7 बहनों में से किसी का बाप नहीं। और हमारे मुआशरे में मर्द तो 4 शादियां कर लेता है, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि किसी औरत ने 4 शादियां की हों। और मेरी माँ चांदनी ने रिकॉर्ड तोड़ा और उसने 4 शादियां की। उसने 4 शादियां की, और डॉक्टर निशात मेरी माँ का चौथा शोहर है। मलका ने आज वो हर बात आश्कार करने की ठान ली जो उसके दिल में महफूज थी। मेरी माँ का ताल्लुक गरीब घराने से था और बाप सब्जी फरोश था। ठेले पर गली मोहल्लों में सब्जी बेचा करता, और हम बहनों की तरह माँ की भी 7 बहनें थीं, और उन बहनों में सबसे खूबसूरत माँ थी। घर में अक्सर फाके होते, लेकिन मेरी माँ को बनने संवरने का बेइंतहा शौक था। पेट भर खाने को हो या ना हो, अच्छे कपड़े चाहिए, और फिल्मों और टीवी ड्रामों से बेपनाह लगाव था। मोहल्ले के खाते पीते घरानों की लड़कियों से दोस्ती गांठ रखी थी, और उनके घरों में घुसी रहती, और VCR पर फिल्में देखी जाती। फिल्में और टीवी ड्रामे देखकर ख्वाब बुने जाते, और मेरी माँ सोती तो मोहल्लों के ख्वाब देखती। और फैशन की मारी माँ ने मैट्रिक तक पहुँचते पहुँचते मोहल्ले के कई लड़कों से पर्चेबाजी कर डाली। हर लड़का उन पर जान छिड़कता और समझता कि यह मेरी जान है, लेकिन वो किसी की ना थी।
اور کالج میں قدم رکھتے ہی ماں نے چھکا لگایا اور ایک گاڑی والے کو اپنے دام الفت میں پھنسا لیا، اور وہ لڑکا اپنی بہن کو لینے آیا تھا۔ میری ماں نے اس لڑکی سے جس طرح تھوڑی بہت دوستی کر لی اور آج خود لفٹ مانگ لی، بس پھر یہ تھوڑی سی لفٹ اس لڑکے کے لیے وبال جان بن گئی، اور ماں اس طرح اس کے گلے کا ہار بنی کہ اسے شادی کرتے ہی بنی۔ اور یہ میری ماں کا پہلا شوہر تھا۔ اس شوہر سے شائستہ، فاخرہ اور ماجدہ نے جنم لیا، اور پھر ایک کوچنگ سینٹر کے پروفیسر سے راہ رسم بڑھی، اور اتنا کہ پہلے شوہر سے خلج کر میری ماں نے پروفیسر سے شادی کر لی، اور میں پروفیسر صاحب کی بیٹی ہوں۔ اور پروفیسر صاحب کو میرے فیشن زدہ ماں کی آزادانہ زندگی پسند نہ آئی، انہوں نے طلاق دے کر ماں سے جان چھڑائی، اور پھر تیسرے شوہر ماں کی زندگی میں آئے اور 3 بیٹیاں دے کر زیادہ عرصے زندہ نہ رہ سکے۔ تیسرے شوہر کی موجودگی میں ہی ڈاکٹر نوشاد کی ماں کی شناسہ ہو چکی تھی، اور چلتا پرزہ ڈاکٹر نوشاد نے ماں کو جانے کیا خواب دکھائے کہ ماں نے تیسرے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ وہ کسی سیاسی پارٹی کا اثر و سوق والا بندہ تھا، اور اس نے طلاق دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اسے ہم 4 بیٹیاں نوٹوں کی طرح صورت میں نظر آئیں، اور وہ ہم سے ہاتھ دھونے کو تیار نہ تھا، اور سنا ہے ماں اور ڈاکٹر نوشاد نے مل کر اسے قتل کر دیا۔ اور اس طرح تیسرے شوہر سے نجات پانے کے بعد ماں نے ڈاکٹر نوشاد سے نکاح کر لیا۔ ڈاکٹر نوشاد نے ماں کو ہر وہ چیز دے دی جس کی وہ خواہش مند تھی، اور میری ماں کو کپڑوں اور زیور سے عشق ہے، اور میری ماں روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر سکتی ہے، لیکن اچھے کپڑوں اور نت نئے زیورات کے بغیر وہ ادھوری ہے۔ اور ماں کے چوتھے شوہر سے خوب گاڑی چھننے لگی، اور دونوں نے مل کر ہمیں بیڑ چک بنا لیا، اور اگر ہم میں سے کوئی بہن کیش ہونے سے انکار کرتی تو اس کا کھانا پینا بند کر کے قید کر دیا جاتا، اور بھوک و پیاس اور قید تنہائی ہمارے ہوش ٹھکانے لگا دیتی۔ یوں بھی ہم نے بچپن سے اپنی ماں کو آزاد روپ میں دیکھا تھا، اور گھر کا ماحول ایک دم کھلا تھا۔ ہمارے چاروں طرف گنگا بہہ رہی تھی، اور ہمیں تو ہاتھ دھونے ہی تھے، اور ڈاکٹر نوشاد انتہائی اثر و شوق والا شخص تھا۔ اسے مشکل سے مشکل کام بتا دیں تو وہ اس کو آسان بنا دیتا، اور کسی کی کہیں کوئی کوٹ پھنسی ہوئی، کوئی فائل رکی ہوئی ہوتی اور ترقی نہ ہو رہی ہو اور ملازمت دلوانی ہو تو ڈاکٹر نوشاد سے لوگ رجوع کرتے، اور ڈاکٹر نوشاد ہمیں فائل کا پہیہ بنا دیتا ہے۔ بس پھر پہیہ لگتے ہی ہر چیز گردش میں آ جاتی ہے۔ اور ملکہ نے گہرا سانس لے کر کہا، اور میرا خیال ہے کہ اب اس گھر کی ہر چیز صاف ہو گئی ہوگی۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب تم لوگوں کے ذریعے گھر کی گاڑی ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی تو پھر تمہاری شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عابر نے پوچھا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس گھر کے لیے ایک سیدھا سادہ چوکی دار چاہیے تھا، اور وہ آپ کی صورت میں مل گیا۔ اور دوسرا، میں اس گھر کی ہارٹ کیک ہوں، اور اس کیک کو اچھی پیکنگ کی ضرورت تھی تاکہ بوقت ضرورت محفوظ کیا جا سکے۔ اور دکان کے اندر بے شک جو بھی کاروبار ہوتا ہے، لیکن دھوکہ دینے کے لیے اچھے سائن بورڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ آپ کی صورت میں اس دکان ماں گھر کو میسر آ گیا۔ اور ملکہ نے تلخی سے کہا اور سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ آج جو باتیں تم نے بتائی ہیں اگر کل مجھ پر آشکار کر دیتی تو کتنا اچھا ہوتا، عابر نے سپار لہجے میں کہا۔ میں نے کئی بار چاہا کہ میں آپ کو ہر وہ بات بتا دوں جو مجھے معلوم ہے، لیکن بتا نہ سکی، بس ارادہ باندھ کر رہ گئی۔ میں نے اشارہ تو کیا لیکن آپ نے کوئی توجہ نہ دی۔ آپ اپنی محبت سے مجبور تھے، اور میں اپنے گھر والوں کی تنبیہ سے۔ راز کھولنے کی صورت میں مجھے زہر دیا جا سکتا تھا، اور ملکہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اور کیا اب زہر سے بچ جاؤ گی؟ عابر نے پوچھا۔ اب مجھے زہر دے کر مارا جائے یا کسی چھری سے میرا گلا کاٹا جائے، مجھے کوئی خوف نہیں۔ اور میرے دل پر ایک بوجھ تھا، وہ میں نے اتار دیا۔ اور ملکہ نے بڑے پرسکون آواز میں کہا، اور یوں ایک بات کہوں، اور پتہ نہیں آپ کو میری بات کو یقین آئے کہ نہیں، میں اس گندگی کا حصہ ضرور تھی، لیکن اس گندگی کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا، اور آپ کے نکاح میں آ کر یہ احساس اور بڑھا۔ اور ابر میں اس گند سے نکلنا چاہتی ہوں، اور میں اس گھر کو چھوڑنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، اور مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، ہم اپنی ایک نئی دنیا بسائیں گے۔ نہیں، اب دیر ہو چکی۔ اور عابر کی ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آ گئی، اور میری آنکھ کھل چکی ہے، میں انہیں بند نہیں کر سکتا۔ عابر ایسا نہ کہو، اپنی ملکہ کا کچھ تو خیال کرو، ملکہ نے التجا کی۔ تمہارا خیال کرتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے، عابر مستحکم انداز میں بولا۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ ملکہ نے چونک کر کہا۔ میں نے اس دکان کو، اسے گھر کہنا تو گھر کی توہین ہے، چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ ہی میں نے تمہیں بھی چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور بلاؤ اس شیطان ڈاکٹر نوشاد کو، اور بلاؤ اس ہرافہ چاندنی کو،
और बुलाओ अपनी कठपुतली बहनों को ताकि हर शख्स मेरा फैसला अपने कानों से सुन ले। और आबर ने तकरीबन चीख कर कहा। मलका सोफे से उठी और वो उसके कदमों में आ बैठी और आंखों में आंसू भर कर बोली, क्या मुझे माफ़ नहीं कर सकते? माफ़ कर तो दिया और कैसे करूं, वरना जो कुछ मैंने देखा है वो वाजिबुल कत्ल था। लेकिन तुमने देखा कि मैंने तुम्हें कत्ल नहीं किया और मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं कहा। और मेरे कदमों से उठ जाओ और मेरे सब्र को मत आजमाओ। जाओ सब कर बुला कर लाओ। और आबर इतना कहकर सोफे से पर जा बैठा। आबर के लहजे में कोई ऐसी बात थी कि वो उससे मजीद बात ना कर सकी और नाचार उठी और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। घर का हर फर्द इस वक्त टीवी लॉन्ज में मौजूद था और मलका दुपट्टे से अपना आंसू पूंछते हुए लॉन्ज में दाखिल हुई और वह सब पर एक नज़र डालते हुए बोली, आप सबको आबर बुला रहे हैं। और सबसे पहले चांदनी उठी और डॉक्टर निशात दौड़कर मलका के नज़दीक पहुंचा और चांदनी से पूछा, करिए तो है ना, क़यामत गुजर चुकी और अमालनामा हमारे हाथ में आने का वक्त आ पहुंचा है। और मलका ने अजीब से अंदाज में कहा। चांदनी की समझ में इसकी बात ना आई और उसने डॉक्टर निशात की तरफ देखा। डॉक्टर निशात ने खुले दरवाजे की तरफ इशारा किया और फिर दोनों तेजी से ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए और उनके पीछे लड़कियां थीं और सबसे आखिर में मलका अंदर आई। बेटा खैर तो है? और चांदनी ने किसी कदर झिझकते हुए पूछा। मैं बेटा कैसे हुआ, घर दामाद बेटा नहीं, घर का चौकीदार होता है और साइन बोर्ड होता है ताकि उसकी आड़ में जो चाहे कारोबार किया जा सके। और मैं साइन बोर्ड को आज तोड़ता हूँ और मैं इस दुकान को छोड़कर जा रहा हूँ और मैं मलका को तलाक देता हूँ। आबर इस जुमले को 3 बार दोहराया और फिर ये देखने की कोशिश भी ना की कि उस जुमले का किस पर क्या असर हुआ। तलाक देकर वो एक लम्हा भी वहां ना ठहरा और मजबूत कदमों से चलता हुआ घर से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद सब एक दूसरे की शक्लें देखने लगे और किसी की समझ में कुछ ना आया कि वो बोले तो आखिर क्या बोले। डॉक्टर निशात के जी में जाने क्या आई कि वह तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और इससे पहले कि डॉक्टर निशात ड्राइंग रूम से निकलता, चांदनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और साफ लहजे में बोली, बस अब खेल खत्म हुआ और जाने वाला चला गया और उसका ताक़ुब बेकार है, अब आगे की सोचो। आबर चाहता भी यही था कि अब उसका ताक़ुब भी कोई ना आए और वह यहाँ गुजरे वक़्त को किसी डरावने ख्वाब की तरह भूल जाना चाहता था। बाजी उलट गई थी और अब फिर से बसात बिछाने का कोई फायदा ना था और वह उस घर से वापस आने के लिए नहीं निकला था। और उस वक़्त रात के 10 बज चुके थे। वो धीरे धीरे कदम उठाता हुआ आगे बढ़ रहा था और उसकी कोई मंजिल ना थी और जिधर उसका मुंह उठा और वह चल दिया। इस वक्त उसकी कैफियत किसी हारे हुए जुआरी की सी थी जो अपना सब कुछ लुटा कर बेसिमत जा रहा था। उन लोगों ने उसका सब कुछ लूट लिया और उसकी मोहब्बत लूट ली थी। उसका वकार दाव पर लगा दिया और उसकी आना के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसकी रूह पर ऐसा घाव लगाया जो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उस घाव से रसने वाला कर्ब उसे तड़पा दे रहा था। अचानक उसे अपना बाप याद आया और अली नसार की कही हुई बात याद आई। उन्होंने कहा था कि कोई नौकरी कोई मुलाजमत तुम्हारे पास नहीं और वो एक बेरोजगार शख्स को अपनी बेटी कैसे दे रहे हैं। और फिर नाज़रीन ने भी शुबा ज़ाहिर किया था कि ज़रूर कुछ दाल में काला है। वाकई दाल में बहुत कुछ काला था और उसने अपने वालिदैन की बात ना मानी और गुस्से में घर छोड़कर चला आया। अपना घर छोड़कर क्या मिला और जिल्लतों और रसवाई। काश उसे अपना घर ना छोड़ा होता और खूबसूरत लड़की के चक्कर में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना की होती। वो अपने दिल में चला जा रहा था कि अचानक उससे कोई टकराया। आज फिर अमाउस की रात थी और माई पंखी के घर में जादू टूने करने वालों का इज्तिमा था। जल मसान तकसीम हो चुका था, मगर वो मकरू चेहरे वाले मर्द औरतें अपने अपने मसाइल बयान करके माई पंखी से महाराना राय ले रहे थे। और जब हर शख्स अपने सवाल का जवाब पा चुका तो माई पंखी ने अजरा डेविड उर्फ सरीली की तरफ देखा। हाँ सरीली कुछ सुनाएगी? माई पंखी ने पूछा। आप जो हुक्म करे रानी जी। और अजरा ने सादतमंदी से कहा। बस वहीं से शुरू कर, माई पंखी बोली। और मुझसे पहले ही मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, अजरा ने पूछा। और यहीं से ना रानी जी? हाँ। और माई पंखी ने कहा। 2:30 बजे का अमल और सेह में टमटमाता हुआ एक मरियल सा बल्ब, पुर इसरार अंधेरा और नीम दरख्त से झड़ती जर्द पत्तियां और मर्द औरतों से भरा हुआ सहन। और जब अजब फजा थी उस घर की और अजरा अपनी जगह से उठी, उसने माई पंखी के घुटनों को हाथ लगाया और फिर वो पाइंती की जानब चारपाई पर बैठ गई। अजरा ने अलाप लेकर जब मुझसे पहली सी मोहब्बत शुरू की तो लगा जैसे फजा ठहर गई हो।
दरवाजे पर खड़े सिपाही ने गाने की आवाज सुनी तो दौड़ता हुआ दिलदार बख्श के पास पहुंचा और बड़ी राजदारी से बोला, सर जी, जुआ खत्म, मुजरा शुरू। और ये सुनते ही दिलदार बख्श को करंट सा लगा और वो गाड़ी से छलांग मारकर बाहर आया और माई पंखी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दिलदार बख्श माई पंखी को अपने जेल से निकाल नहीं सका था और रब नवाज के कातिल बनने और थाने में कौवों की भरमार की वजह से वो उसे कुछ खौफजदा जरूर था, लेकिन इतने लोगों के घर से गायब हो जाने का तजस्सुस जैसे उसकी रूह में उतर गया था और वह हर कीमत पर उस राह से पर्दा उठाए जाने का ख्वाहिशमंद था। नतीजे में उसने सादा लिबास में पुलिस वालों को उसकी घर की निगरानी पर मामूर कर दिया और ये निगरानी 24 घंटे जारी थी और माई पंखी को इसके बारे में कुछ मालूम ना था। दिलदार बख्श को जैसे ही मालूम हुआ कि आधी रात के बाद उसके घर पर लोगों की गैर मामूली आमद का सिलसिला जारी है तो वह पुलिस पार्टी के साथ गली में आ धमका। माई पंखी के दाएं बाएं मकानों का सिलसिला था और वहां से लोगों का फरार मुमकिन न था। घर के सामने वो खुद मौजूद था, अलबत्ता कब्रिस्तान वाली दीवार से फरार होना मुमकिन था और इस मर्तबा उसने कब्रिस्तान में अभी अपने लोग तैनात कर दिए और अब किसी तरफ से घर में मौजूद लोगों के फरार का कोई रास्ता ना बचा। दिलदार बख्श दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर से गाने की आवाज आई। दिलदार बख्श ने सोचा कि कोई और हाथ ना आए, ये पहली सी मोहब्बत जरूर फड़ी जाएगी और उसे मालूम था कि दरवाजा महज एक भारी पत्थर रखकर बंद किया जाता है। उसने कबाड़ को अंदर से धक्का दिया और पीछे से पत्थर हट गया। अपनी जगह से कोई ना हिले वरना गोली मार दूंगा। और चंद कदम अंदर आने के बाद उसने तंबी की। उसे सामने फर्श पर बैठे लोग नजर आए लेकिन माई पंखी दिखाई ना दी और दरअसल उसकी चारपाई बावर्ची खाने की आड़ में थी और वह चारपाई कब्रिस्तान वाली दीवार से लगी थी और माई पंखी के साथ अजरा बैठी गा रही थी। उस धमकी को सुनकर सहन में बैठे लोगों के होश उड़ गए। माई पंखी जो पहली मोहब्बत में गुम थी एकदम चौंकी और दिलदार बख्श की धमकी सुनते ही उसके सारे हवास बेदार हो गए। उसने कदमों में बैठी रंकल के पैर पर पैर मारा और धीरे से बोली, उसकी आंखों में धूल झोंक। रंकल ने किसी कमांडो की तरह छलांग लगाई और फिर रकस के अंदाज में घुंघरू छंकाती हुई दिलदार बख्श के सामने आ गई। पुरकशिश जिस्म को उसने इस अंदाज से हरकत दी कि दिलदार बख्श गोली चलाना भूल गया और रिवाल्वर को हाथ के इशारे से हरकत तो दे रहा था, लेकिन यह समझने से कासर था कि यह औरत आखिर करना क्या चाहती है। वो क्लासिकल अंदाज का रक्स कर रही थी और जिसमें उसकी आंखें, गर्दन और हाथ की उंगलियां बहुत तेजी से हिल रही थी। दिलदार बख्श अपने साथियों समेत दम खुद खड़ा था। बस इतनी मोहलत माई पंखी के लिए काफी थी और माई पंखी चारपाई से उठकर यकदम दिलदार बख्श के सामने आ गई। उसने रिंकल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बस। और अंकल ने माई पंखी का हुक्म सुनते ही दोबारा पांव जमीन पर मारा और फिर जैसे पत्थर की हो गई। माई पंखी 2 कदम आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, आखिर तुझे चैन न आया और फिर आ गया। और दिलदार बख्श बगैर पलक झपके उसे देखता रहा और कुछ न बोला। ला काका और अपनी ये बंदूक मुझे दे दे। और माई पंखी ने अजीब से अंदाज में कहा। और जाने उसकी आवाज में ऐसा क्या था कि दिलदार बख्श ने किसी हारे हुए सिपाही की तरह रिवाल्वर उसके सुपुर्द कर दिया और माई पंखी ने रिवाल्वर लेकर उन सिपाहियों को देखा जो दिलदार बख्श की पुश्त पर मट्टी के बादुओं की तरह खड़े थे। माई पंखी ने पास खड़ी रिंकल को एक मंत्र बताया और फिर बोली, पढ़ो और निकलो। अब वहां मौजूद बंदे बंदियां दिल ही दिल में वो मंत्र पढ़ते और पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए दरवाजे से निकल गए और सबसे आखिर में रिंकल घुंघरू छंकाती दिलदार बख्श के सामने आई और चंद लंबे भाव बताए और फिर मलकती हुए उसके सामने से गुजर गई। सेन खाली हो चुका था और घर में मौजूद सब लोग बखैर आफियत जा चुके थे। माई पंखी आगे बढ़ी। उसने रिवाल्वर दम खुद दिलदार बख्श के हाथ में थमा दिया और शरारती अंदाज में बोली, हाँ काका, कैसे आया है?